علی بابرکت پر حشمت زوراور نام میں آپ سب زوراور لوگوں کو سلام. I'll pray. Holy Father, Heavenly Father, I surrender myself. Help me. Take me. Use me. میں نہیں تیرا پاک روح ہو گیا یسوع کے نام سے آمین. سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت ہیپی مدرس ڈے. سب سپر ڈپر ونڈرفل بریو خوبصورت ماؤں کو سلام. تھینک یو. خداوند آپ کی عزت کو بڑھائے, خداوند آپ کے رتبے بلند کرے, خدا آپ کو آپ کے گھرانوں میں ہمیشہ آباد اور شاد رکھے. یہ میری دعا ہے. آج ہم جیسے حوالہ پڑھا گیا اور جو ٹاپک آپ دیکھ رہے ہیں سامنے, اور جیسا آج کا ہمارا مدرس ڈے کا ٹاپک ہے یہ کہ آج ہم مل کر ایکسپلور کریں گے, سیکھیں گے ماں کے بارے میں کہ ایک ماں ایک بچے کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے اور کیا چینجز لا سکتی ہے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے خدا اور ماں. خدا اور ماں میں کیا ایٹریبیوٹس ہیں جو سیم ہیں, بے شمار ہیں, بٹ چند ایک کو ہم غور کریں گے. خدا کریٹر ہے اور ماں بھی کریٹر ہے. ماں بھی جنم دیتی ہے, ماں بھی انکنڈیشنل محبت کرتی ہے. انکنڈیشنل لو ماں کے اندر ہے اور خدا کے اندر بھی ہے. ماں سیکریفائس کرتی ہے بچوں کے لیے, اپنا آرام, اپنا چین, اپنا ٹائم, ایوری تھنگ وہ سیکریفائس کر دیتی ہے. اور خدا بھی ہمارے لیے سیکریفائس اس حد تک اس نے کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہماری نجات کے اور ہماری رہائی کے لیے. ماں کیئر کرتی ہے. خدا بھی ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں میں, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہماری کیئر کرتا ہے. ایون جب بچہ کتنا بھی گندا کیوں نہ ہوا ہو, وہ کھانا کھا رہا ہے, اس نے کچھ کیا ہوا ہے, اس کے کپڑے گندے ہیں, اس کے ہاتھ گندے ہیں, کوئی اور نہیں بٹ ماں اس کو اٹھا لیتی ہے, گلے سے لگا لیتی ہے, پیار کرتی ہے, چومتی ہے. اسی طرح ہمارا یہوہ خدا ہم کتنے بھی گندے ہوں, غلاظت میں ہوں, گناہ میں ہوں, کمزوریوں میں ہو, بیماریوں میں ہو, He take us, He hug us, He lift up us. Amen? Amen. اور بعض بچے ابنارمل ہوتے ہیں, ان کو ٹیک کیئر کرنا آسان نہیں ہوتا. سب چھوڑ جائے پر ماں کبھی نہیں چھوڑتی. ماں ان ابنارمل بچوں کی بھی ٹیک کیئر کرتی ہے جب تک وہ زندہ رہتی ہے. وہ کبھی نہیں ان کو بولتی. ماں ہیلپر ہے, ہر وقت مدد کے لیے تیار رہتی ہے 24 آورس. جیسے ہماری بہن نے کہا, آپ سب مائیں ہیں, جانتے ہیں 24 آورس اس کو ذرا سی آواز بھی آ جائے بچے کے رونے کی, تکلیف کی, وہ اٹھ کھڑی ہوتی ہے اس کی مدد کے لیے. خدا ہمارا پرووائڈر ہے, اسی طرح ماں بھی پرووائڈر ہے. جیسے ہمارا خدا کلام میں لکھا ہے کہ وہ 99 کو چھوڑ کے ایک کے پیچھے جاتا ہے. ماں بھی سب کچھ چھوڑ کے اپنے بچے کے پیچھے جاتی ہے. جو مرضی حالات ہو, جتنی مرضی مشکلات ہوں, وہ اپنے بچوں کے پیچھے جاتی ہے. ماں اپنی اولاد کے لیے, اس کے سکون کے لیے, اس کے کمفرٹ کے لیے سب کچھ کرتی ہے. اور خدا بھی ہمارا کمفرٹر ہے, وہ بھی سب کچھ کرتا ہے ہمارے لیے. مدر ہیز ability to feed and lead a child. وہ فیڈ بھی کرتی ہے اور اس کو لیڈ بھی کرتی ہے. ہم کتنے بھی گناہ گار ہوں, جیسے مصرف بیٹا جب وہ لوٹ آیا تو اس کے باپ نے اسے گلے لگا لیا. اسی لیے جب ہم لوٹ آتے ہیں تو ہمارا باپ بھی یہوہ خدا, لشکروں کا خدا, رب الافواج ہمیں گلے سے لگا لیتا ہے. ماں کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ وہ وقت پڑنے پر باپ بھی بن جاتی ہے. جیسے آج ہماری بیٹی اوریم نے بھی اس چیز کا اظہار کیا, اینڈ آئی ایم ریئلی گریٹفل. یہ بہت بڑے ورڈنگ ہے میرے لیے. میری ساری محنت کا ایسے ہے جیسے مجھے آج ریوارڈ ملا ہے. She never told me what she is going to share.
तो माँ के अंदर ये क्वालिटी है कि जब वक्त पड़ता है तो वो माँ भी बन जाती है और बाप भी, और यही हमारे खुदा बाप में क्वालिटी है कि हमें माँ और बाप दोनों की मोहब्बत देता है। आमीन। ये थी खुदा और माँ की रिसेम्बलेंस। अब हम मिलके एक्सप्लोर करेंगे एक माँ की जुर्रत को, करेज को इन क्राइसिस, जब मुश्किलात हो, जब बहरान हो जिंदगी में। जैसा हमने पढ़ा एक्सोडस 2 उसके 10 में कि एक माँ का ईमान, एक माँ का खुदा के साथ रिश्ता, उसकी ओबीडियंस, उसका कनेक्शन, उसका डिवाइन एंड डेंजरस फेथ, उसका बोल्ड स्टेप, उसका खुदा पे भरोसा, उसकी सबमिशन, उसका हम्बल फेथ, उसकी दुआएं और उसके राइट डिसीजन। माँ का एक राइट डिसीजन कैन चेंज द डेस्टिनी ऑफ द चाइल्ड। राइट राइट। हालात खराब थे। हम बात करते हैं एक माँ की, एक लावी के घराने की, खानदान की, इब्राम और योकबत। बहुत खराब हालात थे। फरौन ने हुक्म दे दिया हुआ था कि हर नर बच्चे को मार दिया जाए या पानी में बहा दिया जाए। उस वक्त के दौरान योकबत को खुदा ने एक बेटा दिया और उसने देखा कि ये बच्चा खूबसूरत है, और वो जो उसकी टेंशन थी, स्ट्रेस थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, वो मैं इमेजिन करती हूँ उस चीज़ को। वो सोचती होगी कि अगर बेटा हुआ तो क्या होगा। हो सकता है वो विश कर रही हो कि खुदा मुझे बेटी दे दे, ना बेटा हो, ना मुझे उस दुख में से गुजरना पड़े। मगर खुदा के एक अपने मंसूबे होते हैं। उन हालात में जब चारों तरफ तारीकी थी, मायूसी थी, खुदा ने योकबत को एक खूबसूरत बच्चा दिया। जब उसने देखा बच्चा खूबसूरत है, उस जो जैसे खुदा हमारे अंदर हमारी क्वालिटीज़ को, हमारी सारी एबिलिटीज़ को देख सकता है, एक माँ होते हुए हमारे अंदर भी ऐसे जीपीएस और ऐसी वाईफाई और ऐसे कनेक्शंस होते हैं, मिनटों सेकंडों में हम बच्चे का स्कैन कर लेते हैं। राइट, हम कर सकते हैं। जब उसने देखा बच्चा खूबसूरत है, उसने 3 माह तक उस बच्चे को घर में छुपाए रखा, कोशिश की उसको पालने की, बट ज़्यादा देर वो नहीं हाइड कर सकती थी। एक वक्त ऐसा आया जब उसने डिसाइड किया कि अब मुझे इसको दे देना है, छोड़ देना है, खुदा के हवाले कर देना है। उसका वो हर लम्हा यकीनन डर और खौफ और इज़्तिराब में गुजरा होगा। उसने क्या किया, जैसे हमने पढ़ा, एक टोकरी बनाई, एक सरकंडों की टोकरी उसने तैयार की। मैं इमेजिन करती हूँ जब मैं ये तैयार कर रही थी कि जब वो बना रही होगी उस बास्केट को, she decided already what she is going to do, and when she was making that basket, उसके आंसू, उसका दर्द, उसकी दुआएं, उसकी आहें, उसकी तकलीफ, सब कुछ एक एक लम्हा था उसमें जा रहा, और उसको पता था कितना रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है। जब वो इसको बहा देगी पानी में, जानवर, क्रोकोडाइल्स, कुछ भी, शार्क्स, कुछ भी हो सकता है जो इस बच्चे को ले लेगा और इसको मार देगा, और उसको, उसकी डेथ को शायद वो अपनी आंखों से नहीं देखना चाहती थी। ऐसे उसके अंदर एक ईमान था कि जब मैं इस बच्चे को खुदा के हाथों में दे दूंगी तो खुदा इसकी टेक केयर करेगा। जब ने वो तैयार की उसने बास्केट, तो उसने उस बच्चे को डाला, तो मैं सोचती उसने कहा होगा कि खुदावन, मैं जो कर सकती थी मैं इतना ही कर सकती थी, मैं इसको और नहीं छुपा सकती, अब मैं तुझ पे भरोसा करती हूँ, इस बास्केट पे नहीं जो मैंने तैयार किया है, बल्कि मैं तुझ पे भरोसा करती हूँ। जैसे सम टाइम हम मुश्किल हालात में से गुजरे थे, हम कहते हैं खुदावन, चाहे मौत की वादियों में से मेरा गुजर हो, मेरा ईमान है तू मेरे साथ है। ये डिसीजन उसके लिए आसान नहीं था, बट उसने अपने बेटे को
خدا کے بھروسے پر اس باسکٹ میں رکھا اور پانی میں بہا دیا. اور جب وہ اس نے پانی میں بہا دیا، کلام کہتا ہے کہ اس کی بیٹی مریم she was following the basket، اس کو فالو کر رہی تھی. اب جو بیٹی، جو ماں ایسی ہے وہ بیٹی بھی تو ایسی ہوگی کہ اس بیٹی کے اندر بھی کتنا اپنے بھائی کے لیے ایک فکر مندی تھی، ایک محبت تھی. تو یہ اس نے کہاں سے لی؟ اس نے اپنے گھر کے ماحول سے لی. یہ ہمارے گھر کا جو ماحول ہے، ہماری جو تربیت ہے، وہ ہمارے بچے دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو کیسے ہینڈل کر رہے ہیں، کیسے ٹیکل کر رہے ہیں، کیسے ان پہ اوور کم آ رہے ہیں. تو اس لڑکی نے اپنی ماں کی وہ ساری سفرنگ کو دیکھا اور اس نے اس باسکٹ کو فالو کرنا شروع کر دیا. اور جب وہ باسکٹ وہاں تک پہنچی جہاں فرعون کی بیٹی نہا رہی تھی اپنے دوستوں کے ساتھ، that was God's plan. اور وہ جو ٹوکری تھی وہ وہاں پہنچی اور اس نے اپنی دوست کو بولا لاؤ. اس نے جب اسے کھولا، وہ بچہ رو رہا تھا، وہ بچہ زندہ تھا اور وہ رو رہا تھا. اس کا دل، کلام کہتا ہے she filled with compassion. اس کا دل فرعون کی بیٹی کا رحم مانگ گیا، اس کو رحم سے بھر گیا. باپ فرعون قتل کرنے کا حکم دے چکا ہے، بیٹی کا دل رحم سے بھر چکا ہے. یہ ہمارے خدا کے ڈیوائن پلانز ہوتے ہیں. کلام میں لکھا ہے بادشاہوں کے دل خدا کی مٹھی میں ہے، وہ ان کو پانی کے نالوں کی طرح جدھر چاہتا ہے بہا دیتا ہے. خدا نے اس بچے کے لیے آلریڈی وہاں پہ پریپریشن کر رکھی تھی، اس کے لیے مدد تیار کر رہی تھی. اس سے پہلے کہ موسیٰ کو 10 حکم ملتے، اس سے پہلے کہ وعدہ کی سرزمین میں بنی اسرائیل جاتے، اس سے پہلے کہ موسیٰ کو یہ حکم دیا جاتا کہ جگہ پاک ہے اپنی جوتی اتار دے، اس سے پہلے کہ خدا موسیٰ سے ہم کلام ہوتا، اس سے پہلے کہ موسیٰ فرعون کے پاس جاتا کہ میرے لوگوں کو جانے دے، خدا فرماتا ہے، اس سے پہلے کہ بحر قلزم کو بنی اسرائیل عبور کرتے، اس سے پہلے کہ خدا کا یہ وعدہ آتا موسیٰ کے لیے کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا، اس سے پہلے کہ بنی اسرائیل مصریوں سے سونا چاندی لوٹ کر لے آتے، اس سے پہلے کہ خدا کہتا کہ موسیٰ میں تیری زبان کا ذمہ لوں گا. اس سب کے پیچھے ایک ماں تھی جس نے اپنے 3 ماہ کے بچے کو پانی میں ڈال دیا. اس کو یہ آئیڈیا نہ تھا کہ اس کی یہ اوبیڈینس، یہ وفاداری اور اس کا یہ خدا پہ بھروسہ اس بچے کو یہ بنا دے گا کہ وہ بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نجات دے دے. آمین. جب وہ بچہ اس نے دیکھا، اس کو اس پہ رحم آیا فرعون کی بیٹی کو، تو اس کی بہن مریم جو فالو کر رہی تھی، what a smart girl, what a smart girl. She went to her and asked, can I call some woman for that child to feed her, to feed him? اس نے اسے پوچھا کہ کیا میں جاؤں اور کسی عبرانی عورت کو لے کے آؤں جو اس بچے کو دودھ پلائے. ورس 9 میں اس نے یہ لکھا ہے، فرمایا اور اس نے کہا جا. اور وہ لڑکی گئی اور کس کو لے کے آئی؟ اس بچے کی ماں کو لے آئی. جسٹ امیجن کہ اس نے اسے بولا، اس چیز نے مجھے بہت ٹچ کیا. ورس 9 میں اس نے لکھا ہے جب وہ آئی تو اس نے بولا اس بچے کو دودھ پلا، میں تجھے اس کی اجرت دوں گی. وہ کام جو وہ اپنے بچے کے لیے فری کر سکتی تھی، اس نے بولا I will pay for that. What a God's plan. What a God's favor. The thing you can do for free, your enemy is going to pay for that. Amen. Amen. باپ مارنا چاہتا ہے، بیٹی زندہ رکھنے کے لیے پے کر رہی ہے. کیا خدا کے پلان ہے، کیا ہمارا پاورفل خوبصورت خدا ہے. جب ہم اپنے مسائل، اپنے حالات، اپنی چیزیں اس کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں تو پھر وہ موت کو بھی زندگی میں بدل دیتا ہے.
फिर वो मुख्तलिफ वे में हमें रिटर्न करता है, हमारी उस ओबीडियंस को, हमारे उस भरोसे को, उस ट्रस्ट को. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मनी, I am talking about the favor. I am talking about the blessings. I am talking about anointing. I am talking about prosperity, protection, health and providence. Amen? Amen. याकूब ने फिर क्या किया? खुशी के साथ क्या उसकी फीलिंग्स होंगी कि कुछ घंटे हो सकता है, कुछ मिनट पहले जिस बच्चे को वो शायद ये सोच के उसने बहा दिया कि मैं कभी से दोबारा नहीं देख पाऊंगी, उस बच्चे को जब उसने वापस लिया होगा, हक किया होगा, चूमा होगा, प्यार किया होगा, जैसे साम 126:5 में लिखा है, जो आंसुओं से बोते हैं वो खुशी से काटेंगे. वो क्या माहौल होगा जब उसने तड़पते हुए अपना बच्चा दरिया के हवाले कर दिया, जिस दरियाए नील में बाकी बच्चे मर के डूब गए, शायद कत्ल करके फेंक दिए होंगे, वैसे फेंक दिए हो, मगर उस माँ की विजडम ने, उस माँ के भरोसे ने उस मूसा को बचा लिया. मूसा की बास्केट तैरती हुई जब उसके पास पहुंची होगी, फरोह की बेटी के पास, तो मैं गैस कर रही थी कि वो बास्केट कि जो सरकंडे थे वो शायद उसकी माँ की दुआएं थी, और वो दुआएं जैसे बोट के नीचे चप्पू होते हैं और वो उसको रो करके लेके जा रहे होते हैं, उस माँ की दुआएं उस बोट को फरौन की बेटी के पास ले गई, एक महफूज मकाम पर ले गई. इट हैपन्स बिकॉज मदर्स ट्रस्ट. Jochebed, the meaning of Jochebed is God's glory. खूबसूरत नाम, खूबसूरत मतलब, खूबसूरत रिलेशन विद गॉड. मैं इस पर गौर कर रही थी कि ये लावी के खानदान से, आप सब जानते हैं कि लावी का घराना उन 12 कबीलों में से है. हिदमत करते थे, वर्शिप करते थे. उसने अपने घर में वो सब कुछ देखा जिस वजह से आज वो अपने बेटे को इतने ईमान के साथ खुदा के हाथों में उसने सौंप दिया. और वही तरबियत, वही ट्रेनिंग जो उसने देखा वो हम मरियम में भी देखते हैं, उसकी बेटी में. मोस्टली हम डिसाइड नहीं कर सकते हमारे रिजल्ट्स, बट हमारा फेथ, हमारी ओबीडियंस कैन डिसाइड द लेवल ऑफ रिजल्ट्स. आमेन. वो बच्चे को ले गई, उसकी परवरिश शुरू कर दी, उसको फीड करना शुरू कर दिया, और 4-5 साल, गैस इसमें इतना लिखा तो नहीं, उसने उस बच्चे को परवरिश किया, दूध पिलाया, उसके अंदर ईमान प्लांट कर दिया, उसके अंदर कलाम प्लांट कर दिया, उसके अंदर ट्रस्ट प्लांट कर दिया, उसके अंदर शरीयत प्लांट कर दी. यहूदी माएँ जब अपने बच्चों को फीड करती हैं, दूध पिलाती हैं, तो वो साथ शरीयत पढ़ती है, वो शरीयत की बातें उनके अंदर इम्पार्ट कर रही होती हैं. और योकेबद ने भी यही किया, उसने मूसा के अंदर वो सब कुछ प्लांट कर दिया जो आगे चल के जिसने उसको मूसा बनाना था. कलाम में लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन रात इसका ध्यान रहे, तब तो खूब बरोमंद होगा. इसलिए जब जाड़ी में खुदा मूसा को मिला तो मूसा के लिए वो अननोन नहीं थी चीज़. क्यों? क्योंकि उसके माँ ने खुदा का खौफ, खुदा के बारे में उसके अंदर प्लांट कर दिया हुआ था. जब खुदा ने मूसा को जाड़ी में बुलाया तो उसने क्या कहा? मैं हाजिर हूँ. वो डर के भाग नहीं गया, वो गिर नहीं गया, वो छुप नहीं गया. उसने क्या बोला? मैं हाजिर हूँ. इसी तरह हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों के अंदर ईमान का बीज बोएं, कलाम का बीज बोएं, सलामती का बीज बोएं, पाकीज़गी का बीज बोएं. वो बीज बोएं जिसका फ्रूट हम कल को देखना चाहते हैं. 24 आवर्स हमें खड़े रहना है, हमें अड़े रहना है, हमें कलाम बोलना है, क्योंकि कलाम में जिंदगी है. कलाम बेतासीर
नहीं लौटता। और ऐसा बीज के जब खुदा हमारे बच्चों को बुलाए जैसा उसने बुला लिया है, तो ये कहने वाले हो, वी आर हियर गॉड, हम हाजिर हैं, हमें इस्तेमाल कर, हमें ले, जहां चाहता है जिस तरह चाहता है तो यूज कर। ऐसी तरबियत हमें अपने घरों का माहौल ऐसा रखना है। स्पेशली हम माएँ जो हैं, हमारी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमें अपने बच्चों को उस राह पे लेके जाना है कि वो बूढ़े होकर भी उससे ना मुड़े। हम जो कहते हैं बच्चे उतना उसको नहीं शायद सुनते, कुछ परसेंट सुनते हैं, बट जो हम करते हैं वो उसको देखते हैं, वो उसको फॉलो करते हैं, वो उसको देखते हैं कि हमारी माँ क्या कर रही है, हमारी माँ दुआएं कर रही है, हमारी माँ रोज़े रख रही है, हमारी माँ सजदों में गिरी है, हमारी माँ इबादतों में गिरी है, ना कि हमारी माँ दुनियावी कामों में गिरी है। अगर हमारी ज़िंदगियों में हैं ये कमियां कमज़ोरियां, हम इनको रिकवर कर सकते हैं। खुदा ने हमें ये ताकत दी है। एक छोटी सी एग्जांपल मेरे माइंड में आ गई। एक क्लिप मैंने देखा, दो माओं को उन्होंने दिखाया। माँ एक दुआ कर रही थी और उसकी बेटी ने उससे बोला कि मुझे न्यू ईयर पार्टी पे जाना है। माँ ने रोका, वो नहीं रुकी। एक दूसरी माँ उन्होंने दिखाई, उसके बेटे ने उसे बोला मैं न्यू ईयर पार्टी पे जाना चाहता हूँ, उस ये होगा वो होगा। उसकी माँ ने उसे बोला ओके गो, आई एम आल्सो गोइंग। शी वाज आल्सो गेटिंग रेडी। दोनों बच्चे चले गए। जिसकी बेटी गई, जो दुआ में बैठी हुई थी, वो सजदे में गिरी रही, वो दुआ करती रही, वो रोती रही, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसकी मुहाफ़ज़त के लिए, उसकी सलामती के लिए। वो दोनों बच्चे एक बस में जा रहे थे। बस का एक्सीडेंट हुआ, वो लड़का मर गया, वो लड़की बच गई। और उस क्लिप में उन्होंने दिखाया, शी केम बैक टू हर मदर एंड शी वाज स्टिल प्रेइंग एंड क्राइंग। और वो लड़की आके माँ के आगे गिर गई, रोने लग गई, गिड़गिड़ाने लग गई, उसका शुक्रिया अदा कर। दिस इज द पावर ऑफ प्रेयर्स, दिस इज द पावर ऑफ मदर्स प्रेयर्स, जो बच्चों की जिंदगियों को बदल देती है। उनकी दुआएं जो है उनको चारों तरफ से घेर लेती है, प्रोटेक्ट करती है। अगर वो कभी भटक भी जाते हैं तो वो दुआएं उनको उस ट्रैक पे वापस ले आती हैं। जब फ़िरौन की बेटी ने उसको दिया बच्चा और 4-5 साल के बाद गुजर के उसने उसकी तरबियत की, वो उसको वापसी का वक्त आया उस बच्चे का। अगेन डिफिकल्ट टाइम। कोई सी माँ का दिल नहीं करता कि वो 4-5 साल का बच्चा पाल के दोबारा किसी को दे दे। वो चाहती तो ना देती, वो भाग जाती, वो फरार हो जाती, बट शी वॉज द गुड वुमन। खुदा की बंदी थी। उसने ऐसा नहीं किया। उसने उसको ले जाकर फ़िरौन की बेटी को वापस दिया। तब उसने उसका नाम रखा मूसा, जिसका मतलब है पानी से निकाला हुआ। जब वो वापस आया तो उनके मज़ाहिब, उनके देवता, वो सब डिफरेंट थे। माँ ने तरबियत कुछ और इम्प्लांट कर दी थी, खुदा इम्प्लांट कर दिया था, उसको इंस्टॉल कर दिया था, डाउनलोड कर दिया था। खुदा, उसका खौफ, उसकी आवाज़ सुनना। जब वहाँ आया तो उसने यकीनन उनके देवताओं के अलूम भी सीखे होंगे। खुदा के साथ जो उसका रिलेशन था, जो माँ ने इम्प्लांट किया, उसने उसको मूसा बना दिया। बिकॉज गॉड हैज हैड अ डिवाइन एंड सुपरनैचुरल प्लान फॉर मूसा। और माँ वो वसीला बनी जिसने उस खुदा के उस प्लान को कंप्लीट करने में, मुकम्मल करने में, उस बच्चे को मूसा बनाने में मदद की, इस्तेमाल हुई, खड़ी हुई। और माँ के इस फेल ने मौत को जिंदगी में बदल दिया। जो बच्चा गुलाम पैदा हुआ, शहजादा बन के पला, झोंपड़ी में पैदा हुआ, महल में रहा, पैदाइशी गरीब था, बट ही लिव्ड वेरी वेल एंड वेल्थी लाइफ। और पूरी कौम बनी इसराइल की रहाई का वो वसीला बना, माँ की ओबीडियंस। इसी तरह हम मुकद्दसा मरियम को देखें, उसने भी ओबीडियंस दिखाई, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। और वो बच्चा पैदा हुआ जिसने पूरी इंसानियत को निजात और रहाई दी, पूरी बनी नो इंसान को। My dear mothers, our greatest contribution might not be something I do,
but someone we raise. Amen. Sometimes it's not your degree or pedigree, not your wealth or a house we built, the things you own. Sometimes success and legacy doesn't come from I do, but the children we raise. Amen. हिलाया नहीं इस चीज ने आपको कि हमारे पास मालो दौलत पैसा गाड़ियां घर बंगले. It's not bad. It's not bad. Don't take me wrong please. It's not bad. It's also important. But उससे भी important क्या है, हम अपने बच्चों में क्या इंस्टॉल कर रहे हैं, उनकी तरबियत कैसे कर रहे हैं, उनको बड़ा कैसे कर रहे हैं. आमीन. जब हम ईमान, कलाम, दुआ, रोजे, कुर्बानियां, दैयकियों के बीज वो देखते हैं, हमारे वालिदैन स्पेशली माएँ ये कर रहे हैं, तो वो कभी डी ट्रैक हो भी जाएं तो वो डी ट्रैक रहते नहीं हैं, वो लौट आते हैं. दे कम बैक. अपने बच्चों पे हमेशा अच्छा और पॉजिटिव बोलें, उनको बोलें यू आर ब्यूटीफुल, यू आर हैंडसम, you are strong. Tell them you are not victim, you are victorious. Tell them you are not tail, you are head. Tell them price is paid for you. Tell them first seek the kingdom of God. उन्हें बताएं तो उसकी बादशाही और रास्तबाजी को तलाश करो तो बाकी चीजें तुम्हें खुद बहुत मिल जाएंगे. God has purpose and plan in your life. Tell to your children. We need to remind them every day, again and again, that God has great, divine, dangerous plan for you. Dangerous, not negative. Spiritually, positively, dangerous, wonderful, powerful plan for you. जब उनके अंदर ये ईमान, ये चीजें इंस्टॉल हो जाती हैं, तो फिर वो सदरक मिस्र की तरह आग की भट्टियों में भी हो तो खुदा उनके साथ है. डैनियल की तरह शेरों की माद में भी हो तो खुदा उनके साथ है. आग का सतून बनकर, बादल बनकर खुदा उनके साथ रहता है. मूसा को मूसा बनाने वाले उसकी मां योकबत. मत्थियो 17:3 में लिखा है कि मूसा को किसी ने नहीं देखा जब वो मरा, वो अकेला मरा था. मूसा अकेला मरा था, मगर मत्थियो 17:3 में लिखा है कि वो आसमान में बादलों पर यस्सु और एलिया के साथ बातें करता हुआ उन्हें देखा. I mean, this is the Musa, this is the power, this is the training, this is the obedience, this is the trust of the mother. ये था योकबत का बेटा. माँ की दुआ और माँ की तरबियत में इतनी पावर है. मैंने पढ़ा ईगल के बारे में. ईगल जब अपने उस पे स्नेक का शिकार करता है तो वो जमीन से उसको उठाकर आसमान में ले जाता है, ऊपर जाके उसको शिकार करता है, क्योंकि ईगल की टेरिटरी फिजाएं हैं, हवाएं हैं, और उस पे जब वो अटैक करता है तो अपनी टेरिटरी में ले जाता है. जब हमारे पे मुश्किलात आती है, दुख आ जाते हैं, चैलेंजेस आ जाती हैं, टेम्पटेशन आ जाती है, तो हमें उन चीज़ों को उठा के खुदा की टेरिटरी में ले जाना है, खुदा के हुजूर में ले जाना है, उसके मज़बा पे ले जाना है, यहोवा शालूम के पास ले जाना है कि टेक इट, सॉल्व इट, हेल्प मी, कि मैं इसमें से कैसे निकलूं. और हमने इब्लीस को इजाज़त नहीं देनी कि वो हमारे बच्चों को छुए, उनके पीस को, उनकी डेस्टिनी को, उनके फ्यूचर को, मैरिजेस को. इब्लीस को इजाज़त नहीं देनी, उसको कोई राइट नहीं है, क्योंकि हम यहोवा खुदा के बेटे हैं, हम यहोवा खुदा की बेटियां हैं. हमारे अंदर उसका कलाम, उसका ईमान, उसका जोर जो है वो भरा हुआ है. मेरी बहनों, आज की
योकबत की इस स्टोरी से हम सीखते हैं कि हमें कैसी माएँ बनना है। हमें गौर करना है, क्या हमारे अंदर वो ईमान, वो सब कुछ है जिसने एक आम बच्चे को मूसा बना दिया। हमारे बच्चों के अंदर भी वो सारी पोटेंशियल्स हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं जब उनको राइट ट्रैक, राइट एटमॉस्फेयर, राइट माहौल जो है वो चीज़ें मिलेंगी। आमीन। आइए हम दुआ करते हैं, हम गौर करते हैं कि हमारी माएँ जो हैं वो हमारी ज़िंदगियों के लिए कितनी अहम है। अगर हमारी ज़िंदगियों में कोई कमी कमज़ोरी है तो हम दुआ करते हैं कि खुदावन बीइंग ए मदर हम तेरे हुजूर खड़े